Namaste dear bacho, welcome back, and we are discussing balancing of chemical equation, and I thought of making one more video on this with bit difficult redox reactions, and let us see how we can balance those equations with hit and trial method. As already mentioned earlier that in 11th standard there is one chapter called redox reactions in which you'll be taught how to balance redox equations with few techniques. So at present we are discussing just hit and trial method. Hit and trial method is a method by which even a 9th standard student can balance any equation. You don't need any special technique for that, right? So I'll be writing equation this time and then we'll be balancing those equations, right? Let us start with the first equation. Carbon reacts with nitric acid HNO3 to give CO2, carbon dioxide, water and nitrogen dioxide gas. Okay, slowly you have to remember names of the chemicals and their formula. C stands for carbon, HNO3 is nitric acid. This nitric acid is concentrated nitric acid. Concentrated means there is more nitric acid and relatively less amount of water in it, right? So that is called concentrated nitric acid. This represents heating. So carbon, when treated with concentrated nitric acid and heated, we get carbon dioxide gas, water and nitrogen dioxide. The next equation is phosphorus. Phosphorus reacts with nitric acid to form H3PO4 plus H2O plus NO2. Sulfur reacts with nitric acid. All these nitric acid are hot and concentrated nitric acid, hot concentrated nitric acid. On heating gives H2SO4 plus H2O plus NO2. Let us balance these three equations simultaneously. So the first rule of balancing is to see that which element is in combined state with which other element, right? HNO3, here hydrogen, nitrogen, oxygen are in combined state, carbon is alone, phosphorus is alone, sulfur is alone. Here in all the three cases, nitrogen is in this one compound HNO3 on the left hand side and in this one compound NO2 on the right hand side. नाइट्रोजन एक ही जगह दिखता है लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ भी नाइट्रोजन एक ही जगह दिखता है राइट हैंड साइड NO2 में. देन हाइड्रोजन भी यहाँ एक ही जगह है, हाइड्रोजन भी यहाँ वाटर में ही है. बट इन दिस टू just see that hydrogen is present in H2SO4 and H2O. Here hydrogen is present in H3PO4 and water. So ऐसे पहले ऑब्जर्व कर लो इक्वेशन कौन किसके साथ है, फिर बैलेंसिंग शुरू करो. लेट अस चेंज द कलर. वन कार्बन. आप ये भी देखो कि यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, यानी जो नंबर यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा. अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, या अगर यहाँ 3 लिखता हूँ तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा. यहाँ भी नाइट्रोजन 1 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 1 है, तो जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ आएगा. ये पहले से सोच लो आप, राइट? सो फिर एक और बात, वाटर के आगे आप 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, कुछ भी लिखो, वाटर के अंदर हाइड्रोजन इवन नंबर है, इवन डिविजिबल बाय 2, इवन नंबर. H2O 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ कोई भी इंटीजर आप रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी इंटीजर इंटू 2 इज ऑलवेज इवन नंबर. यानी HNO3 के आगे इवन नंबर ही आएगा, और आपको चेक ही नहीं करना है वरना बैलेंस ही नहीं होगा. इवन नंबर यानी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसा ही नंबर आएगा. फिर एक होता है मिनिमम नंबर. यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो मिनिमम यहाँ 2 तो आएगा. विदाउट बैलेंसिंग कितने ऑक्सीजन है? हाइड्रोजन 2 है, तो अगर मैं यहाँ 2 लिखूं तो 6 हो जाएंगे. मैं आपको समझाता हूं. यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो सपोज मैंने यहाँ 2 लिख दिया, तो 2 नाइट्रोजन हो गए, तो मुझे यहां भी 2 लिखना पड़ेगा. अब ऑक्सीजन 6 हो गए, यहाँ 6, हाइड्रोजन 2 हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ 6 है,
4 5 6 7 है, यानी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा। अगर मैं यहां 2 लिखता हूं तो 4 5 6 7 8 8 हो जाएंगे बराबर, तो भी बैलेंस नहीं होगा, यानी ऐसे बैलेंस नहीं होगा, राइट। तो ये 2 निकाल दो। 2 के बाद दूसरा कौन सा नंबर ट्राई करना है, तो मैंने बोला था इवन नंबर ही ट्राई करना है यहां आगे, तो 2 के बाद आप 4 लिख के ट्राई करो। सपोज यहां 4HNO3 है, यहां 4 लिखा तो यहां भी 4 लिखना पड़ेगा नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए। फिर यहां 4 हाइड्रोजन है तो यहां 2H2O। अब देखते हैं बैलेंस होता है या नहीं है। 4 3s are 12 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यहां 8 9 10 11 12, इक्वेशन इज बैलेंस। यू कैन सी इक्वेशन इज बैलेंस। द सेम लॉजिक अप्लाइज हियर, द सेम लॉजिक। विदाउट बैलेंसिंग कितने हाइड्रोजन है, तो 5 हाइड्रोजन है, 3 यहां 2 आया, तो यहां मिनिमम 5 तो आएगा, 5। यहां अगर 5 लिखा तो यहां भी 5 लिखना पड़ेगा नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, यानी देखना पड़ेगा कि बैलेंस है या नहीं है। सो 5 3s are 15 ऑक्सीजन एटम्स। यहां देखो 10 4 14 एंड 1 5 15, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट इक्वेशन। अब देखो यहां भी हाइड्रोजन इवन नंबर है, यहां भी हाइड्रोजन इवन नंबर है। आगे कोई भी नंबर लिखो 1 2 3 4 5 6, यहां भी कोई भी नंबर रखो 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी इवन नंबर, राइट। तो इवन नंबर से ही ट्राई करना है। मिनिमम कितने हाइड्रोजन है, मिनिमम 4 है, तो 4 लिख के आप ट्राई करो। अगर मैंने यहां 4 हाइड्रोजन है तो 4 लिखा, तो यहां 4 तो यहां भी 4। अब आप देखो 4 3s are 12 ऑक्सीजन एटम्स, 8 और 4 12 और 1 13, राइट। तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है, 4 लिखने से बैलेंस नहीं है। तो लेट अस गो विथ द नेक्स्ट नंबर। यहां 4 से बैलेंस नहीं था तो अब 6 लिखना पड़ेगा। मैंने बोला था इवन नंबर ही ट्राई करना है, क्योंकि यहां इवन नंबर ही है, और कोई भी नंबर लिखो इवन नंबर ही रहेगा, कभी ऑड नहीं आएगा। तो 6 नाइट्रोजन, यानी यहां 6 तो लिखना ही पड़ेगा नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए। अब 6 हाइड्रोजन है तो यहां 2 लिख दो। सी और एक बात देखो कि 6 3s are 18, यानी ऑक्सीजन इवन नंबर है। यहां भी ऑक्सीजन इवन है, यहां भी इवन है, तो यहां मिनिमम 2 तो लिखना ही पड़ेगा, तो ही इवन होगा। तो अब देख लो आप, 6 हाइड्रोजन है, 4 और 2 6 हाइड्रोजन, 6 नाइट्रोजन है, 6 नाइट्रोजन है, 6 3s are 18 ऑक्सीजन एटम्स, वी हैव 12 here, 12 and 4 16 and 2 18, इक्वेशन बैलेंस। तो अगर आप देखो तो इसको मैंने बोला है CPS 456, ये याद रह जाएगा आपको। कार्बन फॉस्फोरस सल्फर CPS 4HNO3 5HNO3 6HNO3, यानी ये ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा इक्वेशन, राइट। Let us move to our next 3 equations. Again C, P और S, कार्बन फॉस्फोरस सल्फर, और अब की बार कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, ये कॉन्सनट्रेटेड है। कॉन्सनट्रेटेड यानी कम पानी ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको भी आपको हीट करना है, गर्म करना है, तो ही ये रिएक्शन होगा, राइट। सो कार्बन इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एज इन द प्रीवियस इक्वेशन। Phosphorus is converted to H3PO4 and sulfur is converted to H2SO4. साथ में वाटर और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब केमिस्ट्री में बहुत सारी इक्वेशंस होती है और इक्वेशंस के प्रोडक्ट आपको समझाए जाते हैं कि इसमें ये हुआ वो हुआ, लेकिन प्रोडक्ट तो आपको याद ही रखने हैं, राइट। तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि कार्बन इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, phosphorus is converted to phosphoric acid, sulfur is converted to sulfuric acid,
और ये इसको ऑक्सीडाइज करता है, आगे जाके आएगा व्हाट आर रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होता है वो डिफाइन करेंगे, रिडक्शन क्या होता है। तो अगर आपको वो नहीं पता है तो चलेगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। और सल्फ्यूरिक एसिड का रिडक्शन हुआ SO2 में। तो अभी तो हम बैलेंसिंग सीख रहे हैं भैया, राइट। तो चलो सो अगेन देखो, यहां हाइड्रोजन एक ही जगह है। यहां अगर कोई भी नंबर लिखो 1 2 3 4 5 6 तो हाइड्रोजन इवन रहेगा। यहां देखो ऑक्सीजन इवन नंबर है, फॉर्मूला में ही 4 है इवन नंबर, यानी आगे कोई भी नंबर आएगा ऑक्सीजन इवन नंबर ही रहेगा। तो इवन नंबर करने के लिए ये इवन 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 नंबर है, ये इवन 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 नंबर है, लेकिन ये ऑड 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 है। तो मिनिमम 2 तो लिखना ही पड़ेगा आपको 2 लिखना ही पड़ेगा, राइट। मिनिमम 2 लिखना पड़ेगा तो ही ऑक्सीजन इवन नंबर होगा। एक साइड अगर ऑक्सीजन इवन नंबर है, एक साइड ऑक्सीजन ऑड है, तो इवन नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू ऑड नंबर, तो वो बैलेंस नहीं होगा, राइट। तो यहां 2 लिखा, तो यहां भी 2 लिखते क्योंकि 2H2 है तो 2H2। अब 2 सल्फर है तो 2 सल्फर। अब देखते हैं ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं है। तो 4 2 8 ऑक्सीजन एटम, 4 5 6 7 8 इक्वेशन बैलेंस हो गया। ये दूसरा देखो, अब ये हाइड्रोजन इवन नंबर है, आगे कोई भी नंबर आएगा हाइड्रोजन इवन ही रहेगा। लेकिन यहां तो हाइड्रोजन ऑड था, ऑड है, राइट। तो मिनिमम यहां 2 तो लिखना ही पड़ेगा तो ही हाइड्रोजन इवन नंबर होगा। तो ये 6 और ये 4 10 हाइड्रोजन हो गए। तो ये 10 हाइड्रोजन यहां भी हो गए 5 सल्फर, यानी 5 सल्फर। अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं, 5 4 20। तो ये 10 और 8 18 और 2 20 इक्वेशन बैलेंस, 2 फॉस्फोरस। अब यहां आते हैं, ये हाइड्रोजन इवन है, यहां भी इवन नंबर है। तो लेट अस 4 और 2 6, 4 and 2 6, यस 4 and 2 6। तो यहां 3 रख के देखते हैं, राइट। अब 3 सल्फर है और यहां 4 सल्फर है। तो यहां 1 है, यहां 1 सल्फर तो है, तो यहां 3, तो यहां भी 3। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं है। 4 3 12 ऑक्सीजन एटम्स, 6 and 10 and 2 12। Sulfur plus concentrated sulfuric acid react to give sulfur dioxide and water as the products. The sulfuric acid that is formed again reacts with sulfur, and so we cannot have the same compound on both the sides of the equation. Sulfuric acid यहाँ भी है तो वो माइनस हो जाएगा, वो रिएक्ट नहीं होगा। तो मैंने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो 3 में से 1 था यानी 2। अब आप ऐसे सपोज ऐसा इक्वेशन आपको दिया हुआ है, राइट। सो मिनिमम यहां 2 तो लिखना पड़ेगा टू मेक हाइड्रोजन इवन नंबर, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन इवन नंबर है। तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, और ये 3 सल्फर तो ये 3 सल्फर है। जो प्रीवियस इक्वेशन था उसमें 3 सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ था, 1 सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ था, तो अगर आप माइनस कर दो तो ये नेट इक्वेशन आ जाएगा, राइट। सो these are the 3 equation, carbon, phosphorus and sulfur, that reacts with concentrated nitric acid and sulfuric acid. Hope you have enjoyed balancing of such redox equations, and we'll do few more equations in our next video. Thanks for watching the video.